Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, for SO examination, we have different streams. We will be covering one stream in the video, and I am telling you how you should prepare for that paper, pre as well as main. So, today we will cover Agriculture Field Officer, AFO or Agriculture Officer. The nomenclature of this officer varies from bank to bank. In some banks they are called AFO, on some banks it is called Agriculture Officer. Role of this officer is to build link between the branch and the rural people. That means the people, those are selected as Agriculture Field Officer, they are assigned 2 or 3 branches in rural areas. Some banks it can be more also, where on specific dates these officers visit and do the appraisal of agriculture loan applications. So if you are preparing for this examination, for main paper, you should know the areas that is related to job profile. Most questions will be from that field. So as far as pre-preparation is concerned, you can take mock test which is named as pre-SO. This will help you in improving the skills to cover the pre-paper. Yesterday I posted a video. In that I have discussed how you can improve English, reasoning and quant. So you should cover that and use this mock test. Link is available in description and comment column. Now, as far as your main paper is concerned, no mock test is available for that. But your question is, sir, from where we should cover our agriculture subject for the paper that is in main. First thing I will advise you, you should go through all the guidelines relating to agriculture loans. So in agriculture loan, basically the loans are related to crops, that is called crop loan, Kisan credit card, tractor loan, loans for various implements and loans for various allied activities. So anything related to cropping season, horticulture, agriculture, pisciculture, beekeeping, dairying, farming, all these conceptual things you should cover. And most of the material you can get from NABARD website. Or you can lay hand on agriculture loan circulars from various bank website. Along with that, you should cover your theoretical inputs in the field of agriculture from your degree course textbooks. So the RBI regulation on agriculture loan, bank schemes on agriculture loans, NABARD guidelines on agriculture loan, and your subject knowledge on in the field of agriculture. This will be your subject matter of main paper. So if you prepare like this, you can clear this paper easily. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल हमने IBPS SO नोटिफिकेशन के बारे में एक वीडियो डाली. उसमें से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर ये पेपर कैसे तैयार करें, इस पे भी आप वीडियो डालिए. तो हम धीरे धीरे सारे स्ट्रीम्स को एक एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इस पे हम नहीं डिवोट कर पाएंगे. तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट इसका समझा दूंगा कि तैयारी कैसे करनी है. उस तरीके से आप तैयारी करिए. बीच में अगर टाइम मिलेगा तो और भी वीडियोस में
डाल दूंगा, पर ये वीडियो भी अगर आप पूरी देख लेते हैं और इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। नाउ फर्स्ट पार्ट है प्री। प्री के अंदर आपको क्लियर करना है इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। इसकी कैसे तैयारी करें, कौन से मॉक टेस्ट से हेल्प लें, तो इसमें जो मॉक टेस्ट मैंने सजेस्ट किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दिया। इसमें से प्री एसओ वाला सेट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए। फिर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, रीजनिंग कैसे इंप्रूव करनी है, क्वांट कैसे इंप्रूव करनी है, ये मेरी कल की वीडियो में कवर्ड है, उसको देख लीजिए। इसके बाद मेन आपका जो सब्जेक्ट है वो है मेन पेपर। प्रीम की तैयारी आपकी उसी तरीके से है जैसे बाकी सब पेपर्स में आप करते हो, पर मेन हर्डल होता है इसका मेन। अब मेन कहाँ से तैयारी करें? मेन जो आपका फोकस है वो ये समझना है कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर क्या है, कि वो बैंक और रूरल मासेस के बीच एक कड़ी है। जो भी गांव के लोगों की ऋण संबंधित आवश्यकताएं हैं उनको प्रोसेस करता है एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो मोस्टली बैंक्स में 2 ब्रांचें, 3 ब्रांचें, 4 ब्रांचें एक एग्रीकल्चर ऑफिसर को अलॉट होती है, और वो एक दिन एक ब्रांच में, दूसरे दिन दूसरी ब्रांच में, इस तरीके से रोटेशन में रिपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि आपको एग्रीकल्चर लोन से संबंधित काम करना है, तो अगर उसकी जानकारी आपको है तो नेचुरल है आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं मेन के एग्जाम में। तो विभिन्न बैंकों की एग्रीकल्चर स्कीम्स कौन कौन सी हैं, वो किसी भी बैंक की वेबसाइट से आप जाकर ले सकते हैं और उसको कर लीजिए। नाबार्ड की वेबसाइट से भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में, उसको कवर करिए। तो पहले आप किसी भी एक रूरल ब्रांच में या तो चले जाएं, वहाँ पर पता करिए क्या क्या तरह के लोन हो रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बना लो और उसको फोकस करके स्टडी कर लो। जैसे क्रॉप लोन होता है, क्रॉपिंग सीजन्स क्या है, स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, कौन से एरिया में किस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए, क्या पेस्टिसाइड यूज़ करने चाहिए, ये सब चीज़ें से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। और फसलें कितनी होती हैं साल के अंदर, कौन से एरिया में कौन सी फसल होती है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर ट्रैक्टर लोन है, इक्विपमेंट्स के लोन है, अलाइड एक्टिविटीज़ के लोन है, जैसे डेयरिंग है, बी कीपिंग है, फिश है, पिगरी है। तो तरह तरह के जो किसान काम करते हैं उनसे संबंधित लोन देने होते हैं और उसको प्रोसेस करना होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर को। तो ये स्कीमें क्या है, अभी कई वेयर हाउस की स्कीम आ गई है, कहीं एग्रीकल्चर से संबंधित नई गाइडलाइंस आ जाती हैं, डेट वेवर की स्कीम आ गई या और चीज़ें आ गई। इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये मैंने आपको जो सोर्स बताए हैं, बैंक की वेबसाइट, नाबार्ड की वेबसाइट, आपके कॉलेज टाइम की किताबें, ये आपको मदद करेंगी। तो लिंक मैंने आपको मॉक टेस्ट का दे दिया डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में, वहाँ से आप ले लीजिए और उसको करिए। गॉड ब्लेस यू।